डीएमके सांसद और अधिवक्ता एनआर इलंगो ने कहा, सर प्रक्रिया को लेकर डीएमके ने जो भी कहा था वो जमीन पर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। खुद बीएलओज इस प्रक्रिया को लेकर कई समस्याओं और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। लोग अपने फॉर्म भरी नहीं पा रहे हैं। 2002 की सूची पूरी तरह डाउनलोड नहीं हो रही है। अगर डाउनलोड हो भी जाती है तो उसमें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती, इसलिए लोगों को फॉर्म भरने में भारी असुविधा हो रही है। ये प्रक्रिया सही दिशा में नहीं जा रही है। It's starting from yesterday. It started already. So what are your expectations? See, I'm very happy today Karnataka government is organizing this great international event. A city, you have seen the city, air-conditioned city, a city with innovation, a city with talent, a city with the future of the world. I'm so proud that almost 60 countries have participated today here, and they are all looking at Bangalore. And let us all join together. Thousands of speakers are here today. They are discussing for the next 3 days. They want to shape the world in this from True City. The human capital, the human resources, what is been here can't be matched. I think more than 25 lakh IT professionals are working here. So we all welcome them. I assure to all the participants and the people of this talented world, where we are encouraging in every sector. You know that all the policies were being from the day one were here, and the world leaders every day meet me, speak to me. They want to invest. They want to come to Bangalore. So here is a place, and we will help them in whatever the best possible on their ease of doing business. So under the leadership of my IT minister, Mr. Mallikarjun, our Priyank Kharge, and Mr. Sharad Bachegowda, both of them have joined and helping this government. And all of them, I am getting hundreds of calls so that they will start investing it. And a new IT city also is being planned in the greater Bangalore near Birdi in Bangalore South. So I hope this talent, this research, this innovation, startups will all join together. And even on the cyber issue, cyber crimes are increasing in the world. But Bangalore also has started, and we have taken an initiative from the Karnataka government. Some of the cabinet has given the cabinet. So some of the companies have already started appreciating you after you started repairing the roads and many. No, it is our duty. Criticism could come. We welcome the criticism. At the same time, it is our bound duty to serve them better. Sir, what good news was that? कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, एनडीए बिहार में जनादेश की ताकत पर सत्ता में नहीं आया। एनडीए बिहार में ज्ञानेश के जनादेश की ताकत पर सत्ता में आया है, लेकिन चूंकि ज्ञानेश गुप्ता ने तय कर लिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए कोई भी गठबंधन चुनाव लड़ता, चुनाव आयोग ने उसी अनुसार स्पष्ट परिणाम दिए। बिहार में लोकतांत्रिक जनादेश जैसा कुछ भी नहीं है। अगर सच में लोकतांत्रिक जनादेश होता तो एनडीए बिहार से पूरी तरह साफ हो गया होता। नहीं, देखिए, हमें ये लगता है कि बिहार में जनादेश नहीं प्राप्त हुआ है। बिहार में जनादेश के बल पे एनडीए नहीं आई है। बिहार में ज्ञानादेश के बल पर एनडीए सत्ता में आई है। तो हाँ, ये जरूर कहा जा सकता था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मिलकर अगर वहां चुनाव लड़ता तो कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पे वोटों का इजाफा और गठबंधन के अंदर होता। लेकिन चूंकि ज्ञानेश गुप्ता जी ने यह तय कर दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, तो जब ज्ञानेश गुप्ता जी ने तय कर दिया था कि एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है, तो कोई भी गठबंधन लड़े, चुनाव आयोग तो क्लियर रिजल्ट दे दिया। 7 करोड़ 42 लाख वोटर, ये चुनाव आयोग ने ही कहा, और वोटिंग के बाद 7 करोड़ 45 लाख निकले। आपने 69 लाख वोट काटे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आप उसका नाम पब्लिश करो,
पब्लिश नहीं हुआ। 21 लाख नए वोटरों का नाम पब्लिश नहीं हुआ। तो ये तो कुमार ज्ञानेश हो या ज्ञानेश हो, ये तो उनका माइंडेड है। ये लोकतंत्र का माइंडेड बिहार में नहीं है। लोकतंत्र का अगर माइंडेड मिलता तो एनडीए पूरी तरह से बिहार में साफ हो चुकी थी। लाल किले के पास दिल्ली में हुए आतंकी हमले और महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा, मेरा मानना है कि दिल्ली की इस घटना में आतंकवादी ही शामिल थे। मुफ्ती जी ने जो कहा है वो सही है। ये घटना कश्मीर में लंबे समय से हो रहे अन्याय का परिणाम हो सकती है। सरकार की हमेशा से गलती रही है कि उसने एक विशेष समुदाय के खिलाफ माहौल बनाया। सरकार को संवाद की पहल करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, क्या आरएसएस गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों में विश्वास रखता है? सभी ऐसे संगठनों की जांच होनी चाहिए जो हिंसा में विश्वास रखते हैं। दूसरा सवाल सर, लाल किले पर कुछ दिन पहले हमला हुआ जिसके 72 से अधिक घंटे बाद उसको टेररिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है उस तरीके से देखा गया, उसकी घोषणा की गई। आप कैसे देख रहे हैं इस लाल किले की घटना को? पहली चीज। दूसरी चीज, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर में जो लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, वो जो कश्मीर में जो स्थिति है उसी का एक नमूना जो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिला है। मेरे ख्याल से ऐसा है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें आतंकवादी ही लोग होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि इसमें कोई शक लेने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर हमेशा उनके ऊपर अन्याय करती रही है। वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है इसका एक काम। ये और 307 वो भी हटाने की बात हुई, वो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं, ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा, नहीं किया होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि सरकार ने इस तरह से एक समाज के खिलाफ हमेशा वातावरण करना बिल्कुल गलत बात है। सरकार ने डायलॉग करना चाहिए, हमेशा बातचीत करनी चाहिए और सारे समाज को साथ में लेना चाहिए। और जो हिंसा के ऊपर जिन जिन संगठन का विश्वास है वो सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करूँगा। अन्याय मेरे पर होगा तो भी हिंसा का करो ऐसा बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देश अहिंसावादी देश है, ये देश गांधी जी का देश है। लेकिन गांधी जी के अहिंसावाद को मानने वाले आरएसएस हैं क्या? क्योंकि उनके कंधे के ऊपर लाठी होती है, हिंसा का सिंबल है और वो अहिंसावादी नहीं है। वो बोलते हैं क्या हम अहिंसावादी हैं करके बोलते हैं, कभी नहीं। तो जो हिंसा पे विश्वास जिन संगठन का है सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में आरएसएस की इंक्वायरी होनी चाहिए, या आरएसएस को जो लोग हैं जिस प्रकार से वो लोग चुनाव प्रचार करते हैं या जिस प्रकार से वो लोग बयानबाजी करते हैं, उनमें जो दिल्ली ब्लास्ट है उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका ताल्लुकात हो सकता है, जिस मामले में जांच होनी चाहिए सरकार? ना जांच होनी चाहिए, किसका क्या है, क्या रिएक्शंस क्या हो रही है, कि सबका होना चाहिए। आरएसएस का डायरेक्ट उधर हाथ होगा ऐसा मेरा कहना नहीं। लेकिन क्या है और जगह होता है ना, बुलडोजर चलाते हैं, इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिज होगा तो अन्याय अत्याचार होते हैं, लोगों को मारते हैं। ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये हिंसा, उनके हिंसे पे विश्वास उनका इससे हो रहा है। मेरे ख्याल से जिन संगठन का हिंसा पे ऊपर विश्वास है, अहिंसा के खिलाफ जो बोलते हैं। बीएमसी चुनावों पर बोलते हुए शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने कहा, मुझे लगता है कि महायुति के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। महाविकास अघाड़ी जो ये दावा कर रही है कि उनका मेयर चुना जाएगा, वो सिर्फ सपना देख रही है। उन्हें देखना चाहिए कि बिहार में उनके साथ क्या हुआ। वे सपने देखते रहें क्योंकि मेयर तो महायुति का ही होगा। सऊदी अरब में भारतीय उम्रा तीर्थ यात्रियों की बस दुर्घटना पर उन्होंने कहा, यह अत्यंत दर्दनाक घटना है। शोक व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उनकी बस का अपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 42 यात्रियों की जो है दर्दनाक मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही
दर्दनाक बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है और इस तरीके की घटना दिल को दहला देती है, चाहे वो देश के या दुनिया के किसी भी कोने में हो। इस तरीके की घटना बहुत ही, उसके लिए शब्द नहीं है। हम उस यात्रा में जो भी लोग आज नहीं है अपने में, हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस तरीके की घटना को टालने की कोशिश हर एक में करनी चाहिए, हर एक में सावधानी बरतनी चाहिए, यही हम दुआ करेंगे। सर, आने वाले बीएमसी इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन की ओर से लगातार जो है कहा जा रहा है कि महापौर जो है वो हमारा होगा और वहीं दूसरी ओर महायुति सरकार कह रही है कि महापौर हमारा होगा। आमने सामने जो है महायुति महाविकास आघाड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी आमने सामने नहीं है, महायुति के सामने कोई भी नहीं है। अपोजिशन जो कह रही है कि महापौर अपना होगा, उन्होंने बिहार में देखना चाहिए, उन्होंने अपने आप में देखना चाहिए कि पहली बात है कि जो महाविकास आघाड़ी है वो साथ में है या नहीं है। कांग्रेस लात मार रही है ठाकरे बंधु को, ठाकरे बंधु कांग्रेस को लात मार रहे हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। और ऐसी स्थिति में महापौर के सपने देखना वो शेख चिल्ली जैसा हो गया है और अपोजिशन शेख चिल्ली की ही भूमिका में है। तो ऐसे सपने उनको देखना जायज है, सपने देखना चाहिए, लेकिन इस मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में महापौर जो बैठेगा वो महायुति का ही बैठेगा, दूसरा कोई महापौर बैठने का कोई भी सुतराम 0.1% भी शक्यता नहीं है उसकी। दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, हमने 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा दी है और आज़ादपुर बस टर्मिनल का आधुनिकीकरण किया गया है। यहां से 21 स्थानों के लिए 116 बसें संचालित होंगी। यात्रियों के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। तो आज हमने 40 बसों का इनॉग्रेशन किया है और ये जो बस टर्मिनल है, ये बस टर्मिनल एक आधुनिक बस टर्मिनल बनाया गया है, पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ से 21 साइटों पे 116 बसें हमारी जाएंगी और यहाँ पे हर पैसेंजर्स के लिए बैठने की व्यवस्था, ट्रांजिटर के लिए वॉशरूम की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के साथ इसको हमने बनाया है। इसको जरूर आप देखिए और ये दिल्ली की जनता के लिए जो सुविधा चाहिए वो दी है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, विकास एक बड़ा मुद्दा है और इसी वजह से हमें इतना बड़ा जनादेश मिला है। ये बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक पार्टियां जातीय रेखाओं से ऊपर उठकर चुनावों में विकास को मुख्य मुद्दा बनाएं। भारत विकास को प्राथमिकता देने वाले पार्टियों पर भरोसा जिताया जिस तरीके से बिहार में भी। हाँ, तो डेवलपमेंट तो बड़ा मुद्दा है ही है, तभी तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है। प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं तो सत्य है ना कि विकास को, डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया है जनता ने और विकास के लिए तो अच्छा ट्रेंड है ना। कास्ट लाइन से ऊपर उठ करके अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया बनेगा तो जो भी पार्टी डेवलपमेंट के लिए अग्रसर रहेगी, जिनका थॉट प्रोसेस रहेगा, वो बेटर परफॉर्म करेगा, वो बेटर जनता में उनका एक्सेप्टेंस होगा। कल राजद का समीक्षा बैठक था और समीक्षा बैठक में बातें ये निकली कि वोट चोरी और ईवीएम का दुरुपयोग का मुद्दा ये लोग बताया, जिस तरीके से लोग के हार होती। कोई ना कोई तो मुद्दा उठाएगा ही ना, कोई ना कोई तो मुद्दा। तो SIR, EVM, ये सब वोट चोरी, सब तो बेसलेस बात है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सभी लोगों ने फिर से शब्द लिया। हाँ, तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें कौन नेता होगा नहीं होगा तो उनका अपना निर्णय है। कल लालू यादव भी बैठक में पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा है अपने संबोधन कार्यकर्ताओं और विधायकों को संबोधित करते हुए कि घर का पारिवारिक मामला जिस तरीके से रोहिणी के साथ हुआ, हम लोग घर में पारिवारिक रूप निपटा लेंगे, तो ध्यान ताड़ करने को जनता को ध्यान देने की जरूरत है अपना। ठीक बात है, जनता पर ध्यान देना है। तो 5 साल जनता ने कैसे अपने आप को लोग करेंगे तो उनका अपना इंटरनल ये उनका इशू है, लेकिन जनता ने उनके कार्यप्रणाली और उनके सभी घोषणाओं को रिजेक्ट कर दिया।
कब तक सर अब ओथ सेरेमनी 20 को कहा जा रहा है कि 20 को ओथ सेरेमनी हो रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर कई एनडीए घटक दल के बड़े बड़े नेता हैं, उस कई स्टेट के सीएम भी वो भी आएंगे। आ सकते हैं, 20 को तो ओथ का है चर्चा, 20 के ओथ का चर्चा है। जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। हाँ होगी, समय पर सब हो जाएगा, सब समय पर हो जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें